friends. I'm CS Divya Bajpayee. I hope you all are fine. And today in this video, I will explain you the notification given by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises dated 26 June 2020. In this notification, I will talk about Yudhyam registration, which has replaced the earlier UAM Aadhaar registration with effect from 1st day of July 2020. Under this notification, the ministry has classified the enterprises in three categories based on what? Based on the investment in plant and machinery or equipment and turnover. An enterprise shall be classified as micro, small and medium enterprise on the basis of the following criteria, namely a micro enterprise having an investment in plant and machinery equipment does not exceeding 1 crore and turnover not exceeding 5 crores. For a small enterprise, investment in plant and machinery does not exceed 10 crores and turnover does not exceed 50 crore. And for a medium enterprise, investment in plant and machinery equipment does not exceed 50 crore rupee and turnover does not exceed 250 crore. Now, what to do become a part of micro, small and medium enterprise? For becoming a part of a MSME, any person who intend to establish a micro, small, medium enterprise after the date of 1st July 2020 on or after. Any person who intend to establish a micro, small or medium enterprise may file a Yudhyam registration online in the Yudhyam registration portal based on self-declaration with no requirement to upload documents, paper, certificates or proof. कोई भी बंदा कोई भी अगर अपने आप को MSME में रजिस्टर करना चाहता है तो उसको युद्धम रजिस्ट्रेशन कराना होगा based on the self-declaration. No other uploading of documents and papers are required on this portal. On registration, what will happen? An enterprise will be assigned with a permanent identification number to be known as a Yudhyam registration number. एक permanent identification number allot कर दिया जाएगा enterprise को, which is known as Yudhyam registration number. An e-certificate, namely Yudhyam registration certificate, shall be issued on completion of the registration process. Now coming to the third point of the notification, which talks about composite criteria of investment and turnover for classification. So for in the earlier UAM registration, we classify enterprises in micro, small, medium enterprise based on the plant and machinery, investment in plant and machinery and equipment. But right now you have to see turnover also in this new criteria. A composite criteria of investment and turnover shall apply for classification of an enterprise as micro, small or medium. Now, see the second point very carefully. Ministry is giving a clarification to us. Okay. If an enterprise crosses the ceiling limit specified for a present category in either of the two criteria of investment or turnover, what does it say? Suppose I am running an enterprise, ABC Enterprises. Okay, I am running, and investment in plant and machinery is within 1 crore. Okay, below the threshold limit, and turnover is also within 5 crore, and I am falling under a micro enterprise as per the new classification. But if you see the point number second again, I am just clarifying you with example. Okay, if an enterprise crosses the ceiling limit specified for a present category in either of the two criteria of investment or turnover, it will cease to exist in that category and be placed in the next higher category. But no enterprise shall be placed in the lower category unless it goes below the ceiling limit specified for its present category in both the criteria of investment as well as turnover. अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल से आपको ये सेकंड पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आई एम श्योर. ओके, एग्जाम्पल ये दे रही हूँ कि मेरी ABC एंटरप्राइज है जिसकी टर्नओवर विद इन 1 करोड़ से कम है
ओके, टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है, ठीक है। तो मैं तो माइक्रो इंटरप्राइज में क्लासिफाई कर रही हूँ, बट सपोज अब मेरा टर्नओवर जो है ना वो 5 करोड़ से बढ़कर इस बार 7 करोड़ हो जाता है। अगर 7 करोड़ हो जाता है तो आई विल बी रिक्लासिफाइड, अपग्रेडेड टू द नेक्स्ट लेवल, टू द स्मॉल लेवल, ओके, बिकॉज वो थ्रेशोल्ड टर्नओवर की वो हिट कर गई है और मैं अब स्मॉल इंटरप्राइज हो जाऊंगी। बट कहता अगर मेरी ABC इंटरप्राइज पहले से ही स्मॉल में फॉल करती थी और टर्नओवर और प्लांट एंड मशीनरी दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया ऐसा है कि वो डाउनफॉल कर गया, तो ऐसा नहीं है मैं रिवर्स लोअर चली जाऊंगी। मेरा टर्नओवर, प्लांट एंड मशीनरी दोनों ही डाउनफॉल करना चाहिए मेरे स्मॉल के क्राइटेरिया से, तब मैं रिवर्स माइक्रो में जाऊंगी। बट अपग्रेड करने के लिए ये कह रहे हैं, ये एक भी कंडीशन अगर हिट हो गई तो हम आपको अपग्रेड कर देंगे, बट रिवर्स आपको अगर आपका डाउनफॉल है बिजनेस में तो हम दोनों क्राइटेरिया देखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर की। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, all units with goods and service tax identification number GSTIN listed against the same permanent account number PAN shall be collectively treated as one enterprise, and the turnover and investment figures for all of such entities shall be seen together. It says अगर एक पैन पे 5 GST हैं तो हम कलेक्टिवली इंटरप्राइज को एक ही ट्रीट करेंगे हम उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए, और जो टर्नओवर इन्वेस्टमेंट के फिगर्स है वो हम एक साथ एग्रीगेट करके ही लेंगे, ये डिसाइड करने के लिए, ये क्लासिफाई करने के लिए कि वो किस कैटेगरी में आ रही है, इधर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज। Now coming to the fourth point, that is on calculation of investment in plant and machinery or equipment. The calculation of investment in plant and machinery or equipment will be linked to the income tax return for the previous years filed under the Income Tax Act 1961. What does it say? ITR में जो भी हमारे previous year की calculation है ये उससे linked होगा। So friends, जो भी filing ITR में last year करी है आपने वही figures यहाँ पे show करने। In case of new enterprise where no prior ITR is available, जहाँ पे पहले कोई ITR फाइल नहीं की है, नई enterprise है, the investment will be based on the self declaration of the promoter of the enterprise. वो कह रहे हैं प्रमोटर सेल्फ डिक्लेयर कर दे अमाउंट इन्वेस्टमेंट का, and such relaxation shall end after the 31st March of the financial year in which it files its first ITR. But ये relaxation सिर्फ तब तक है जब तक आपने ITR नहीं फाइल कर दी। एक बार आपने ITR फाइल कर दी एक फाइनेंशियल ईयर में, लेट सपोज मैंने अपनी इंटरप्राइज ABC इंटरप्राइज की ITR फाइल करी 30 सितंबर 2020 में, तो ये कहते हैं कि मुझे ये रिलैक्सेशन सेल्फ डिक्लेरेशन का सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च 2021 तक के लिए मिलेगा। क्योंकि ये कह रहे हैं रिलैक्सेशन एंड हो जाएगा आफ्टर 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल इन विच इट फाइल्स। मैंने 2021 के फाइनेंशियल में फाइल करी अपनी रिटर्न, 2021 के बीच में ही आता है 30 सितंबर 2020, ठीक है, मैंने उस दिन फाइल कर दी, तो मेरे को जो ये सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिला हुआ है 31 मार्च 2020 तक ही मिला है। Now coming to third point, the expression plant and machinery equipment of the enterprise shall have the same meaning as assigned to the plant and machinery in the income tax rules. See the income tax rules. मैं सब कुछ यहाँ नहीं बता सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, just refer it। और मैं अपनी सेपरेट वीडियोस में आपको एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन आपके साथ फर्दर करूँगी। फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, ओके। So now coming to the third point, what I am saying, the expression plant and machinery equipment of the enterprise shall have the same meaning assigned as an income tax rule framed under the Income Tax Act में जो भी है वही meaning plant and machinery equipment को यहाँ भी है, and shall include all tangible asset. Plant and machinery equipment सारे tangible asset होते हैं other than means excluding land and building, furniture and fittings. For the calculation of plant and machinery it is very important, so for calculation purpose just refer this and याद रखिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमें कहाँ से प्लांट एंड मशीनरी कैलकुलेशन करना है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, द परचेज इनवॉइस वैल्यू ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट
whether purchase first or second hand shall be taken into account excluding goods and services tax on self declaration basis if the enterprise is a new one without any ITR. अगर ITR है तो ITR में से आप अपना परचेज वैल्यू ले लेंगे प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट का. अगर नहीं है तो भले ये फर्स्ट हैंड सेल है सेकेंड हैंड सेल है, नो इश्यूज, बट आपने जो भी इनवॉइस वैल्यू परचेज प्राइस जो भी आपका था परचेज वैल्यू थी उसमें आपने जो भी जीएसटी का अमाउंट दिया उसको एक्सक्लूड करके जो भी प्राइस होगा वो सेल्फ डिस्क्लोजर बेसिस पे हम मान लेंगे कि वो प्राइस है. ओके, द कॉस्ट ऑफ सर्टेन आइटम स्पेसिफाइड इन द एक्सप्लेनेशन 1 to subsection 1 of Section 7 of the Act shall be excluded from the calculation of the amount of investment in plant and machinery. It says Section 7 subsection 1 का explanation 1 जो भी है MSME Act में उसमें जाके आप देख लीजिए कि क्या चीज़ें exclude करी जाएंगी calculation purpose के लिए investment in plant and machinery के लिए. Now talking about calculation of turnover. इस स्कीम में टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे होगी? एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज ऑफ बोथ शैल बी एक्सक्लूडेड while calculating the turnover of any enterprise whether micro small or medium for the purpose of classification. हम किसी से कोई भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो इंटरप्राइज माइक्रो स्मॉल मीडियम हो. हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड और सर्विसेज दोनों को ही कह रहे हैं कि भैया बाहर रहो. हम टर्नओवर के लिए जब हम टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो हम आपको कंसिडर नहीं करेंगे. Second, information as regards turnover and export turnover for enterprise shall be linked to the Income Tax Act or the Central Goods and Service Act, CGST Act and the GSTI number. जो भी इंफॉर्मेशन टर्नओवर के रिगार्डिंग एक्सपोर्ट टर्नओवर के रिगार्डिंग है वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट से और जीएसटी नंबर से और इनकम टैक्स से लिंक्ड रहेगी. सो फ्रेंड्स, सब जगह एक ही इंफॉर्मेशन होनी है. एवरीथिंग शुड बी cross check at any time. Okay, the turnover related figures of such enterprise which do not have PAN will be considered on self declaration basis for a period up to 31st March 2021. Okay, कह रहे हैं जिस भी इंटरप्राइजेस का पैन नहीं था, जिसके पास उसके टर्नओवर के फिगर्स हम सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे ले लेंगे, बट इसकी भी एक कट ऑफ डेट दे दी है कि हम 31 मार्च 2021 तक ही ऐसा करेंगे. उसके बाद आपका पैन और जीएसटी होना एमएसएमई उद्योग आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है. ओके, नाउ कमिंग टू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस that I told you earlier, it's an online registration process. The form for the registration shall be as provided in UDM registration portal. आपको UDM registration portal में फॉर्म मिल जाएगा एंड there will be no fees for filing UDM registration. No government fees is levied on this. आधार नंबर shall be required for UDM registration. ये आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन है तो आपको आधार नंबर चाहिए होगा. तो किसका चाहिए होगा? आधार नंबर shall be of proprietor in case of proprietorship firm or of a managing partner in case of partnership firm and of a कर्ता in case of Hindu undivided family. प्रोप्राइटर बिजनेस के केस में प्रोप्राइटर का हमें आधार चाहिए होगा, पार्टनरशिप के केस में मैनेजिंग पार्टनर का, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में हमें कर्ता का आधार नंबर चाहिए होगा फॉर दिस रजिस्ट्रेशन पर्पस. एंड इन केस ऑफ अ कंपनी और अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ सोसाइटी और अ ट्रस्ट, द ऑर्गेनाइजेशन और इट्स ऑथराइज सिग्नेटरी शैल प्रोवाइड इट्स GSTIN and PAN along with its आधार नंबर. कंपनी के केस में, एलएलपी के केस में, सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रस्ट के केस में ऑर्गेनाइजेशन के जीएसटी और पैन के साथ हमें ऑथराइज सिग्नेटरीज के आधार से हमारा काम चलेगा. ओके, नाउ कमिंग 6 point. In case an enterprise is duly registered as an udyam with PAN, any deficiency of information for the previous year when it did not have PAN shall be filed up on self declaration basis. They say are saying अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन जिस पैन के साथ होता है उससे रिलेटेड कोई भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन है जिसमें कुछ डिफिशियंसी है तो वो हम सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे ले लेंगे एज आपके पास पैन नहीं था. सो ये कंसिडर हो जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे. Now coming 7 point, no enterprise shall file more than one UDM registration provided that any number of activities including manufacturing or service or both may be specified or added in one UDM registration. It says कि कोई भी enterprise
एक से ज़्यादा युद्धम रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकती। सपोज मेरी ABC इंटरप्राइज मैन्युफैक्चर भी करती है, सर्विस भी प्रोवाइड करती है, तो मैं स्पेसिफिकली अपने एक उद्यम रजिस्ट्रेशन में दोनों चीज़ों को मेंशन करके ऐड करके मैं एक उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकती हूँ। नाउ कमिंग टू द 8 पॉइंट, whoever intentionally misrepresents or attempts to suppress the self-declared facts and figures appearing in the Yudhyam registration or updation process shall be liable to such penalty as specified under section 27 of the act. जिस किसी ने भी मिसरिप्रेजेंट या फिर कोई इन्फॉर्मेशन सप्रेस करने की कोशिश की ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशन फैक्ट्स पे, तो उसके अंदर डिपार्टमेंट चाहे तो सेक्शन 27 ऑफ द MSME एक्ट के अंदर एक्शन पेनाल्टी लेवाई कर सकती है। नाउ कमिंग टू द 7 पॉइंट, ये सबसे बड़ा सवाल है सबके मन में। हमसे ये क्वेश्चन हर किसी ने पूछ लिया इस नोटिफिकेशन के बाद कि मैडम हमने तो UAM रजिस्ट्रेशन करा रखा है और अब क्या हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा? तो आंसर इज येस, यू हैव टू। द department is saying registration of existing enterprise talks about, so I'm discussing with point number 1. All existing enterprise registered under EM part 2 or UAM shall register again, see the word again, on the Udyam registration portal on or after the first day of July 2020. First day of July 2020 से ये effective हो जाएगा, पोर्टल शुरू हो जाएगा। तो इस दिन से, इस दिन के बाद अब कब तक मैक्सिमम टाइम, दिस इज द फर्स्ट डेट फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट रजिस्ट्रेशन फॉर उद्यम स्कीम, ओके, अंडर MSME। बट आई एम टॉकिंग फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। कब तक हो जाएगा लेट्स सी, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स में आएगा। ऑल एंटरप्राइज रजिस्टर्ड टिल 30 जून 2020 शैल बी रीक्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विद दिस नोटिफिकेशन। उन्होंने कह दिया कि आप अगर 30 जून तक भी UAM नंबर ले लेते हैं तो आपको फिर से रिक्लासीफाई करना पड़ेगा अपने आप को इस नोटिफिकेशन के तहत, और आपको तब भी उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो आई सजेस्ट, अभी आज 27 है, 28, 29, 30 डोंट नीड टू गो फॉर द MSME रजिस्ट्रेशन until and unless it is very much required for you and it's an urgent matter. Don't go for it, because अगर आप इस 3 दिन में अगर अपना MSME ले भी लेते हैं, UAM नंबर ले भी लेते हैं, तो भी आपको 1 जुलाई से उसको इफेक्टिव हो जाएगा युद्धम रजिस्ट्रेशन, और उसमें अगेन आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द 3rd पॉइंट, ये मैक्सिमम लिमिट बता रहा है कि कब तक आपके पास जो एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज है जिनके पास UAM है उनके पास कब तक का टाइम है कि वो अपग्रेड करा ले UAM को उद्यम में। द एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड प्रायर टू 30 जून 2020 shall continue to be valid only for a period up to 31st day of March 2021। ये कह रहे हैं 31 मार्च 2021 तक आपका UAM है। आपको 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में अपने UAM को उद्यम में कन्वर्ट कराना है। एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस प्लीज़ आप इस पे ध्यान दीजिएगा। An enterprise registered with any other organization under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises shall register itself under युद्धम registration। कोई भी enterprise जो किसी और संस्था के साथ, जो कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज मिनिस्ट्री के अंडर है, अगर किसी और संस्था के साथ रजिस्टर्ड है कोई भी इंटरप्राइज, तो उसको भी रजिस्टर कराना है उद्यम रजिस्ट्रेशन में। Now coming to the 8 point, updation of information in transition period and classification. An enterprise having Yudhyam registration number shall update its information online in the Yudhyam registration portal, including the details of the ITR and the GST return for the previous financial year and such other additional information as may be required on self declaration basis। कोई भी इंटरप्राइज जो उद्यम रजिस्ट्रेशन कराती है उसको इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है ऑनलाइन पोर्टल पे, उसकी ITR की डिटेल और GST रिटर्न की प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की डिटेल और भी जो इन्फॉर्मेशन है, और ऑन व्हाट बेसिस, ऑन बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन। सेकेंड, फेलियर टू अपडेट द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द ऑनलाइन युद्धम रजिस्ट्रेशन पोर्टल विद रेंडर द इंटरप्राइज लायबल फॉर सस्पेंशन ऑफ इट्स स्टेटस। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं की विद इन टाइम, विद इन 31 मार्च 2021, तो इंटरप्राइज को सस्पेंड कर दिया जाएगा MSME के स्टेटस से।
Based on the information furnished or granted from government sources, including IT or GST return, the classification of the enterprise will be updated. गवर्नमेंट के पास आपकी ITR और GST रिटर्न है, अगर उसके बेस पे कुछ चेंजेस आए हैं तो वो अपडेट कर देंगे आपको. अगर आपने लिखा आप मीडियम हैं और उनके अकॉर्डिंग आप माइक्रो में फॉल करते हैं, या आपने कहा आप स्मॉल में फॉल करते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप मीडियम में फॉल करते हैं, तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे इस क्लासिफिकेशन के बेस पे. दैट्स इट. फोर्थ पॉइंट, इन केस ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम अ लोअर टू अ हायर कैटेगरी. व्हाट डज इट मीन, क्या बात कर रहा है ये? कह रहा है लोअर कैटेगरी जैसे माइक्रो से आप स्मॉल में जा रहे हैं, और अ रिवर्स ग्रेजुएशन स्लाइडिंग डाउन, अगर आप मीडियम से स्मॉल में आ रहे हैं. अगर अ कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू द एंटरप्राइज अबाउट द चेंजेस इन स्टेटस. मैंने कि जैसा बताया कि गवर्नमेंट आपके IT और GST के डेटा से रिक्लासीफाई करेगी, बट इस केस में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. In case of upward change in terms of investment in plant and machinery equipment or turnover or both and consequent reclassification, अगर कोई upward change हो गया प्लांट एंड मशीनरी में, इक्विपमेंट में, टर्नओवर में, और उसकी वजह से आपका रिक्लासीफाई हो गया, आप स्मॉल थे लेट सपोज, अब आप माइक्रो में आ गए, या फिर आप ये समझ लीजिए कि सॉरी ये अपवर्ड है ना, तो अपवर्ड के केस में अगर आप मान लीजिए आप स्मॉल थे और मीडियम में आ गए, ओके, तो उस केस में आपको एंड कंसिक्वेंट रिक्लासिफिकेशन, और उसमें आपका रिक्लासिफिकेशन, तो एन एंटरप्राइज विल मेंटेन इट्स प्रिवेलिंग स्टेटस टिल द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द क्लोज ऑफ द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर आज हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया और हमारी इन्वेस्टमेंट प्लान मशीनरी में बढ़ गई, हमने स्मॉल में कराया, हम अब मीडियम में फॉल करने लगे, तो हमारा जब वो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके 1 साल के बाद हम अपना स्टेटस रिक्लासीफाई कर सकते हैं. इन केस ऑफ रिवर्स ग्रेजुएशन ऑफ एन एंटरप्राइज, वेदर एज अ रिजल्ट ऑफ रिक्लासिफिकेशन और ड्यू टू एक्चुअल चेंजेस, या तो रिक्लासीफाई किया इसलिए रिवर्स चेंज आया, या फिर एक्चुअली हमारा क्या इन्वेस्टमेंट डाउनफॉल कर गया, टर्नओवर और दोनों चीज़ें यहाँ डाउनफॉल कर गई, वेदर द एंटरप्राइज इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट और नॉट, द एंटरप्राइज विल कंटिन्यू in its present category till the closure of the financial year. ये कह रहा है अगर डाउनफॉल भी आ गया तो हम, अगर मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर डाउनफॉल आया तो हम क्लोजर तक अभी उसी स्टेटस में रहेंगे, एंड इट विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ चेंज स्टेटस ओनली फ्रॉम. हम ये नहीं कह सकते अगर हम मान लीजिए हम स्मॉल में आते थे और सडनली हमारा डाउनफॉल हो गया, क्लासिफिकेशन की वजह से हुआ, या मेरा एक्चुअली इन्वेस्टमेंट प्लान एंड मशीन चेंज हो गया विद इन 2020 में, अगर मान लीजिए 20 अक्टूबर 20 को मेरा हो गया और फाइनेंशियल ईयर मेरा 2022-2021 है, और 20 अक्टूबर को चेंज हो गया, तो मेरे को अभी, मैं ऐसा नहीं 20 अक्टूबर में तुरंत मैं रिक्लासीफाई, नहीं, मेरे को 31 मार्च 2021 तक उसी कैटेगरी में रहना पड़ेगा स्मॉल की, एंड आफ्टर जो 1 अप्रैल होगा 2021 का, वहाँ से मैं रिक्लासिफिकेशन के लिए बोल सकती हूँ, जिसमें भी मेरा रिक्लासिफिकेशन हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा, तो मैं माइक्रो में आ सकती हूँ. Okay, now coming to the 9th point, it talk about facilitation and grievance redressal of the enterprise. Basically it is giving about brief of a single window facilitation system in their district. Just read it out. And it is saying ki if you see the 3rd point, I will just elaborate. If you are not having your Aadhaar and you just enroll for the Aadhaar, so just get it the identity slip and copy of your bank passbook or any voter ID, passport, any address proof you will take with you and approach to the single window system. They will facilitate you for getting your Aadhaar registration as well as Yudhiyam registration. Now coming to the 4th point, if you see, in case of any discrepancy or complaint, the general manager of the district industry center of the concerned district shall undertake an inquiry for verification of the details of Yudhiyam registration submitted by the enterprise. अगर कुछ भी discrepancy आई और complaint आई, तो जनरल मैनेजर जो डिस्ट्रिक्ट का लेवल पे होगा वो आपके इन्फॉर्मेशन को, इंटरप्राइज को क्रॉस वेरीफाई करेगा, फॉरवर्ड करेगा मैटर किसको, डायरेक्टर ऑफ कमिश्नरेट और इंडस्ट्री सेक्रेटरी कंसर्न्ड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, हु आफ्टर इशूइंग अ नोटिस टू द एंटरप्राइज, के
ये मैटर जाएगा सीनियर ऑफिशियल्स के पास, वहाँ से आपको नोटिस आएगा, इंटरप्राइज को नोटिस आएगा, एंड आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट इट केस, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप जस्टिफाई करिए कि आपने ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं और आपके अगेंस्ट जो कंप्लेन है उसमें आपने क्या किया, टू प्रेजेंट इट केस एंड बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स, जो भी फाइंडिंग मिलेंगी मे अमेंड द डिटेल। फिर वो चाहे तो मिनिस्ट्री को ये रिकमेंड कर सकते हैं कि डिटेल्स को या तो अमेंड कर दीजिए जो एमएसएमई के पोर्टल पे है, यूडीएम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, या वो ये रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इनका यूडीएम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही कैंसिल कर दें। सो फ्रेंड्स, सेल्फ डिक्लेरेशन है तो, बट आपको चीज़ें प्रॉपर देंगे। आई होप ये वीडियो लंबा हो गया है और आई थिंक कुछ पॉइंट्स हो सकता है माइन्यूट पॉइंट्स देयर आर मिसिंग इन एक्सप्लेनेशन। सो मैं इस पे सेपरेट पॉइंट्स पे डिटेल वीडियो बना के भी शॉर्ट वीडियोस अपलोड करूँगी आपके क्लैरिफिकेशन के लिए। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा होगा, और आई जस्ट वांट कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सो दैट आई विल डू बेटर एक्सप्लेनेशन फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, and yes, stay safe, stay at your home as possible for you, and stay connected with me. Thank you, have a nice day.